لانگ مارچ کی باقاعدہ اس سے پہلے تمام جلسوں کی اجازت دی گئی، پورے ملک میں انہوں نے جلسے کیے، اس کے بعد لانگ مارچ کی ان کو اجازت دی گئی، لانگ مارچ انہوں نے کیا، وہ اسلام آباد پہنچے، اسلام آباد پہ جس جگہ پر انہوں نے کہا اس جگہ پہ ان کو جو ہے وہ سیٹل کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جو ہے وہ ریڈ ایریا میں نہیں جائیں گے، اس کے باوجود وہ وہاں پہ بھی گئے، پولیس کے لوگوں پہ بھی تشدد کیا، ایک ایس پی کو جو ہے وہ وہاں پہ جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا، پی ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، تو یہ ساری چیزیں اس کے باوجود جو ہے وہ ہم نے ان کی وائلنس کو جو ہے وہ تدبر اور بیلنس سے جو ہے وہ روکا۔ جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم اس دوران جو مقدمات درج ہوئے ان مقدمات میں یا جو وائلنس کے واقعات ہوئے ان میں اگر کسی کو اریسٹ کیا گیا ہو تو کیا گیا ہو، اس بنیاد پہ جلسہ کرنے یا اپنی جو پرامن قانونی کارروائی کرنے قانون کے مطابق اپنا اجتماع کرنے پر کسی کے خلاف نہ کوئی مقدمہ درج ہوا، نہ کسی کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ ہم آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا پرامن پروگرام ہے، ہم قطعاً کوئی وائلنس کی طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن حکومت جو رکاوٹیں ڈال رہی ہے اور حکومت جو ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے یہ تشدد کے راستے کو جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، جس کے اوپر ہم نہیں جانا چاہتے۔ اور یہ جلسہ جو ہے یہ ہر قیمت پہ ہوگا اور یہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور پاکستان کے عوام کو یہ جلسہ خوشخبری دے گا کہ یہ نالائق اور نااہل ٹولہ جو سلیکٹڈ حکومت اس ملک پہ مسلط کی گئی ہے، نہ صرف اسے دفع کیا جائے گا بلکہ آئندہ کے لیے یہ دروازہ ہی بند کر دیا جائے گا۔ دیکھیں یہ صرف خوف و ہراس پھیلانے کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ صرف وہاں پہ کنٹینر اس لیے رکھے گئے ہیں کہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ لوگوں کو جانے سے روکا جائے گا۔ یہ گجرانوالہ کی طرف 16 اکتوبر کو جو لوگوں کا سیلاب اور جس طرح سے لوگ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ آ رہے ہوں گے نا، یہ کنٹینر وغیرہ ان کا راستہ نہیں روک سکتے۔ یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، یہ حکومتی پراپیگنڈا ہے۔ اسی طرح سے پراپیگنڈا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک غداری کا پراپیگنڈا کیا گیا، وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک سب نے کیا، اور اس کے بعد ایک مقدمہ درج کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بعد میں وہ مقدمے سے بھی بھاگ گئے۔ مریم نواز صاحبہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں رہ کے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اور اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کی قیادت کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس جدوجہد میں بھرپور اپنا کردار ادا کریں گی، اور انشاءاللہ تعالی اس تحریک کو، پی ڈی ایم کی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ان کو صرف اس کا مختصر یہ جواب دوں گا کہ اشرف انصاری کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے، وہ اب مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہے۔ رانا صاحب اشرف انصاری کا کہنا ہے کہ ہم اس دن حب وطن ریلی نکال لیں گے جس کے ہم جگہ جگہ کنٹینر بھی لگائیں گے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے یہ بات 2 مرتبہ یہ کی ہے کہ ہم یہ پرامن جو ہے یہ اجتماع کرنا چاہتے ہیں، جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت جو ہے یہ مختلف بہانوں سے اس میں تشدد لانا چاہتی ہے، اس کی ذمہ داری پھر حکومت پہ ہی ہوگی۔ یہ جو جس ریلی کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس دن ہمارا جلسہ ہوگا پی ڈی ایم کا، اسی دن وہ ریلی کا اہتمام کریں گے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر جو بھی نتیجہ ہوگا، پھر جو یہ حرکت کرے گا وہ پھر بھگتے گا۔ اچھا رانا صاحب، انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے رات سے جو کنٹینر ہے ان کی پکڑ ہوگا اور جی ٹی روڈ پہ ہوگا، یا پھر اگر آج یا کل اجازت مل جاتی ہے، این او سی جاری کر دیا جاتا ہے، نوٹیفیکیشن آپ کو دے دیا جاتا ہے، تو کیا پھر جناح اسٹیڈیم پہ کریں گے یا فائنل ہے کہ اب ہوگا تو جی ٹی روڈ پہ ہی ہوگا؟ دیکھیں یہ پی ایم ایل این نے آج اس اجلاس میں شرکت سے پہلے جو مشاورت کی تھی، تو ہماری پارٹی کی یہ رائے تھی کہ اگر ہمیں یہ بر وقت سے مراد یہ ہے کہ آج کے بعد یہ کل آپ دوپہر تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر مقامی طور پہ جو بھی وینیو ہو وہاں پہ انتظامات بھی کرنے ہیں، تو اگر یہ بر وقت ہمیں اس بارے میں مطلع نہیں کرتے تو پھر ہم جلسہ جو ہے وہ جی ٹی روڈ پہ کریں گے، اور یہی مشاورت جو ہے وہ ہم نے اپنے قائدین جو کہ تمام جماعتوں کے
यहाँ पे नुमाइंदे बैठे हैं, इनके सामने रखी है, तो इन्होंने अभी इस बात का इंतज़ार की बात की है कि कल तक आप देख लें कि वो इजाज़त देते हैं या नहीं देते। तो ये फिर ऐसी सूरत भी हो सकती है कि अगर पीडीएम ये फैसला करता है कि हमने हर सूरत में जना स्टेडियम में ही जलसा करना है, तो फिर इमरान खान खुद याद कर ले कि उसने किस किस जगह पे, जब उसको वेन्यू की इजाज़त नहीं दी गई और ऑफ़र किया गया कि आप फलां जगह पे जलसा कर लें, तो उसने जो है वो इजाज़त के बग़ैर जलसे किए। लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने, PMLN की हुकूमत ने ऐसी सूरत में भी उनको फैसिलिटेट किया कि इज्तिमा करना जो है ये हर सियासी जमात का आईनी और कानूनी हक है। हम ये जो जलसा करने जा रहे हैं ये हमारा आईनी हक है। पुरअमन इज्तिमा हमारा आईनी हक है। इस पुरअमन इज्तिमा को तशद्दुद की तरफ जो है ये अब गवर्नमेंट लेके जा रही है। गवर्नमेंट का इजाज़त ना देना, गवर्नमेंट का हमारे जो यानी जलसे की तैयारी के लिए जो मीटिंग्स हो रही हैं, जिस तरह से कायरा साहब ने बताया आपको, वहाँ पे जो है वो पुलिस को भेजना, लोगों में खौफ व हरास जो है वो पैदा करना, ये तशद्दुद का रास्ता है। ये गवर्नमेंट अपनाने जा रही है, तो इसकी फिर तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे ही होगी। कायरा साहब जो बयानिया मियां नवाज शरीफ का ऐसा करना चाहती है, लेकिन उन्होंने अभी तक जो वेन्यू है वो हमें हैंड ओवर नहीं किया। तो मैं आज पीडीएम की जो मीटिंग हुई है उसमें तमाम जमातों के नुमाइंदों ने इस अज़म का इजहार किया है कि अगर हुकूमत जो है वो इस बारे में कोई बात वाज़े नहीं करती, तो फिर ये कायदीन जो आपके सामने बैठे हैं ये फैसला करेंगे कि पीडीएम ने कहाँ पे जलसा करना है, और फिर उसको जो है वो उस वेन्यू को जो है वो पीडीएम जो है वो अपने जलसे के लिए जो है वो डेकोरेट करेगी और इसे इस्तेमाल करेगी। लेकिन हुकूमत जो है और मकामी इंतज़ामिया जो है अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि मकामी इंतज़ामिया की ये हैसियत नहीं है कि वो अपने से जो है वो ऐसे फैसले करे। वो हमारे जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो गली महल्ले और हर जगह पे हमारे वर्कर्स और पीडीएम की नुमाइंदा जमातें जो हैं वो मोबिलाइजेशन के लिए जो मीटिंग्स कर रही हैं कि हम ये पुरअमन जो है ये इज्तिमा करना चाहते हैं, जलसा करना चाहते हैं। हुकूमत जो है ये मुख्तलिफ बहानों से इसमें तशद्दुद लाना चाहती है। इसकी ज़िम्मेदारी फिर हुकूमत पे ही होगी। ये जो जिस रैली की आप बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि जिस दिन हमारा जलसा होगा पीडीएम का, उसी दिन वो रैली का एहतमाम करेंगे, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका फिर नतीजा क्या होगा? फिर जो भी नतीजा होगा, फिर जो ये हरकत करेगा वो फिर भुगतेगा। फिर अच्छा, राणा साहब, इंतजामिया और पुलिस की तरफ से रात से जो कंटेनर है उनकी गद्दारी का प्रोपेगेंडा किया गया, वज़ीर-ए-आज़म से लेके नीचे तक सब ने किया, और उसके बाद एक मुकदमा दर्ज किया, और उसके बाद जो है वो फिर बाद में वो उस मुकदमे से भी भाग गए। मरियम नवाज साहिबा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में रह के जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और अपोजिशन की दूसरी जमातों की क़यादत के साथ मिल के जो है वो इस जदोजहद में भरपूर अपना किरदार अदा करेंगी, और इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक को, पीडीएम की तहरीक को कामयाबी से हमकरार करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। उनके कारकुनों को 60-60 दिन के लिए बंद कर दिया गया, ये बात गलत है। उनको लॉन्ग मार्च की बाकायदा इससे पहले तमाम जलसों की इजाज़त दी गई, पूरे मुल्क में उन्होंने जलसे किए। उसके बाद लॉन्ग मार्च की उनको इजाज़त दी गई। लॉन्ग मार्च उन्होंने किया, वो इस्लामाबाद पहुँचे। इस्लामाबाद पे जिस जगह पर उन्होंने कहा उस जगह पे उनको जो है वो सेटल किया गया। उसके बाद उन्होंने वादा किया कि वो जो है वो रेड एरिया में नहीं जाएंगे। इसके बावजूद वो वहाँ भी गए, पुलिस के लोगों पर भी तशद्दुद किया। एक एसपी को जो है वो वहाँ पे जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया, पीटीवी के ऊपर जो है वो हमला किया। तो ये सारी चीज़ें इसके बावजूद
जो है वो हमने उनकी वायलेंस को जो है वो तदब्बर और बैलेंस से जो है वो रोका। जो आप ये बात कह रहे हैं, हम उस दौरान जो मुकदमात दर्ज हुए, उन मुकदमात में या जो वायलेंस के वाक़यात हुए, उनमें अगर किसी को अरेस्ट किया गया हो तो किया गया हो, इस बुनियाद पे जलसा करने या अपनी जो पुरअमन कानूनी कार्रवाई करने कानून के मुताबिक अपना इज्तिमा करने पर किसी के खिलाफ ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना किसी को जो है वो गिरफ्तार किया गया। हम आज भी ये कह रहे हैं कि हम ये पुरअमन जलसा करना चाहते हैं, ये हमारा पुरअमन प्रोग्राम है। हम कत्तन कोई वायलेंस की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन हुकूमत जो रुकावटें डाल रही है और हुकूमत जो हथकंडे अपना रही है, ये तशद्दुद के रास्ते को जो है वो लेके जा रहे हैं, जिसके ऊपर हम नहीं जाना चाहते। वोट को इज्जत दो से मुराद, हम कब कहते हैं कि वोट हमें दो? वोट से इज्जत दो से मुराद है कि वोट के फैसले को तस्लीम करो। ये मुल्क जो है ये वोट के फैसले को तस्लीम करके ही बना था, ये इलेक्शन के नतीजे में ही बना था, ये किसी जंगो जदल के नतीजे में नहीं बना था। और मियां नवाज शरीफ का बयानिया ये है कि वोट के फैसले को तस्लीम करो और आइन को तस्लीम करो, और आइन में जिनका काम है सियासत करना वो सियासत करें, और जिनका काम नहीं है वो नहीं करें। अब इससे आप मुझे बताएं कि इससे किसको इनकार हो सकता है, या इससे जो है वो कोई इससे इनहराफ कर सकता है? मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में अफवाज के जवानों को, अफसरों को 3 मरतबा हाथ उठा के जो है वो सलूट किया है, शुहदा को जो है वो सलाम पेश किया है, उन अफसरों और जवानों को सलाम पेश किया है जो इस मुल्क की सरहदों की जो है वो हिफाजत करते हैं। लेकिन इस मुल्क के इलेक्शन में और इलेक्शन के नतीजे में जो है वो आप मुझे बताएं कि कोई ये कहता है कि वो इस बात को कोई तस्लीम करता है कि उसने मुदाखलत की है? अगर किसी ने मुदाखलत की है तो उसने खुफिया तौर पे की है, छुप के की है। तो ये खुफिया और छुप छुपा के जो है ये मामला जो है 70 सालों में इन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। अगर आज या कल इजाजत मिल जाती है, एनओसी जारी कर दिया जाता है, नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाता है, तो क्या फिर जिन्ना स्टेडियम में करेंगे या फाइनल है कि अब होगा तो जीटी रोड पे ही होगा? देखिए, ये पीएमएलएन ने आज इस अजलास में शिरकत से पहले जो मुशावरत की थी, तो हमारी पार्टी की ये राय थी कि अगर हमें ये बर वक्त से मुराद ये है कि आज के बाद ये कल आप दोपहर तक देख सकते हैं, उसके बाद फिर मकामी तौर पे जो भी वेन्यू हो वहाँ पे इंतजामात भी करने हैं। तो अगर ये बर वक्त हमें इस बारे में मुतला नहीं करते तो फिर हम जलसा जो है वो जीटी रोड पे करेंगे। और यही मुशावरत जो है वो हमने अपने कायदीन जो कि तमाम जमातों के यहाँ पे नुमाइंदे बैठे हैं इनके सामने रखी है। तो इन्होंने अभी इस बात का इंतज़ार की बात की है कि कल तक आप देख लें कि वो इजाज़त देते हैं या नहीं देते। तो ये फिर ऐसी सूरत भी हो सकती है कि अगर पीडीएम ये फैसला करता है कि हमने हर सूरत में जना स्टेडियम में ही जलसा करना है, तो फिर इमरान खान खुद याद कर ले कि उसने किस किस जगह पे जब उसको वेन्यू की इजाज़त नहीं दी गई और ऑफ़र किया गया कि आप फलां जगह पे जलसा कर लें, तो उसने जो है वो इजाज़त के बग़ैर जलसे किए। लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने, पीएमएलएन की हुकूमत ने ऐसी सूरत में भी उनको फैसिलिटेट किया कि इज्तिमा करना जो है ये हर सियासी जमात का आइनी और कानूनी हक है। हम ये जो जलसा करने जा रहे हैं ये हमारा आइनी हक है, पुरअमन इज्तिमा हमारा आइनी हक है। इस पुरअमन इज्तिमा को तशद्दुद की तरफ जो है ये अब गवर्नमेंट लेके जा रही है। गवर्नमेंट का इजाज़त ना देना, गवर्नमेंट का हमारे जो यानी जलसे की तैयारी के लिए जो मीटिंग्स हो रही हैं, जिस तरह से कायरा साहब ने बताया आपको, वहाँ पे जो है वो पुलिस को भेजना, लोगों में खौफ व हरास जो है वो पैदा करना, ये तशद्दुद का रास्ता है, ये गवर्नमेंट अपनाने जा रही है। तो इसकी फिर तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे ही हो। बहुत शुक्रिया जनाब राना सनाउल्लाह साहब और मेरे सारे
साथी, मैं मीडिया के दोस्तों से माजरत चाहता हूं, हम अपनी मीटिंग में ज़रा लेट हुए और आपको इंतज़ार करना पड़ा। राणा साहब ने आज की मीटिंग की गर्ज़ोगायत भी और वहां पे होने वाले फैसलों से आपको आगाह कर दिया। हमारे लिए कोई नया ये अमल नहीं है। जो हुकूमती रवैया और इनके हथकंडे हैं, इन फाशिस्ट हुक्मरानों से इसी बात की तवक्को की जा सकती है। खान साहब, आपने कहा कि आपको आज़ादी है जलसे करने की, लेकिन अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो जेल में जाएगा। किस कानून के तहत वज़ीर आज़म हमें धमकियां दे रहा है? हम पुरअमन लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम कानून और आइन के मुताबिक चलना चाहते हैं। यही हमारी पुरअमन जद्दोजहद हमेशा रही है। हमारा किसी से लड़ाई नहीं है, हमारा इदारों से भी लड़ाई नहीं है। हमें उस सोच से इख्तलाफ है, उसके खिलाफ हमारी ये जद्दोजहद है और पुरअमन जद्दोजहद है कि मुल्क के अंदर आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराए जाएं, सियासत के अंदर मदाखलत का अमल ख़त्म किया जाए और इस मुल्क को आइन के तहत चलाया जाए। आइन के अंदर दर्ज जो इख्तियारात है उनके तहत इस मुल्क को चलाया जाए। ये हमारा सादा सा मुकालमा है और मुतालबा है। और ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान की ज़बान बोलते हैं। अगर ये मुतालबे करना हिंदुस्तान की ज़बान है तो कौम इस पर फैसला देगी। और आज हमारा जलसा राणा साहब कामयाब हो चुका, इसलिए कि हुकूमतों के बुखलाए हुए चेहरे और उड़ी हुई हवाइयाँ, इनके चेहरों, इनके लहजों की जो लर्जिश है वो इस बात की गमाज है कि वज़ीर आज़म से लेके उनके आम कारकुन तक जो मुसलसल गाली गलोच और ये तरीके हैं, ये काम नहीं करेंगे। ये हमारे आपस में फूट डालने के रवैये, तरीके, साजिशें कामयाब नहीं होंगी। हमारे क़यादत से लेके कारकुनों तक इस बात को बखूबी समझते हैं और हम इस अमल से पिछले 50 साल से गुजर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपके कोई हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। आज वज़ीर आज़म कहता है कि मेरी तरफ से हमने फैसला कर लिया कि जलसे की इजाज़त है। ज़िली इंतज़ामिया, जैसा राणा साहब ने कहा, जलसे की इजाज़त नहीं दे रही। ट्रांसपोर्टरों को बुला बुला के धमकियां दी जा रही हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से। जो हमारे बैनर लिखने वाले या ये जो होर्डिंग्स बनाने वाले हैं, उनको बुला के ज़िली इंतज़ामिया ने धमकियां दी हैं कि जिसके आपने बनाए होर्डिंग्स हम आपके खिलाफ पर्चा दे देंगे। ना होर्डिंग रुक सकते हैं, ना झंडे रुक सकते हैं। वो आपको अंदाज़ा नहीं है। हम तो एक एक झंडा लेके चले तो पाकिस्तान का पूरा एक कौसे कज़ा बनाएंगे इंशाल्लाह। इस स्टेडियम के अंदर हम इस गुजरांवाला में 16 तारीख को वो खूबसूरत कौसे कज़ा बनाएंगे जिससे ये बदकिस्मती के बादल जो इमरान खान की सूरत में, जो इस मुल्क में झूठ की सियासत की सूरत में, जो इस मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई की सूरत में हमारे ऊपर और आइन से इन्हिराफ की सूरत में मुल्क के ऊपर हैं, मौजूद हैं, ये छट जाएंगे। और इस तरह के हथकंडे, ना ट्रांसपोर्ट रुकेगी। हम ज़ियाउल हक के आमर के मार्शल लॉ का मुकाबला कर सके, वो नहीं रोक सका। तुम जहाँ जहाँ रोकोगे वहीं वहीं जलसे होंगे। और इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला का हमने तय किया है, गुजरांवाला में जलसा करके रहेंगे। और कौम के सामने एक और यू टर्न आ गया कि वज़ीर आज़म कह रहा है कि हमने इजाज़त दे दी और डॉक्टर साहब यहाँ इजाज़त की सूरत हाल राणा साहब ने बयान कर दी है। हमारे कारकुन जब तैयारी के लिए अपने मीटिंग्स करते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, अपने इजलास करते हैं, उसके अंदर पुलिस जा रही है। और मैं पंजाब पुलिस को भी कहूँगा कि आप किसी के ज़ाती मुलाजिम नहीं हो। जो बात इमरान खान ने अपनी तकरीर में कही, क्या वही बनना चाहते हो? मैं आईजी पंजाब से भी कहूँगा, मैं पंजाब पुलिस के तमाम अफसरों से कहूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि वो ISI को पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे। क्या साबित करना चाहते हो कि आज पंजाब पुलिस वही है जो इमरान खान चाहता है, जो पंजाब हुकूमत चाहती है? कुछ खुदा का खौफ करो। आप इस मुल्क के, इस रियासत के मुलाजम हो, किसी शख्स के नहीं। और अपने आप को और आपकी तनख्वाहों में इजाफे हम करते हैं, आपकी नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ हम देते हैं, इस जैसे लोग नहीं देते। लिहाजा आप अपने आप को आइन और कानून के दायरे में रखो। अगर हम हुकूमत से और बाकी इदारों से ये मुतालबा कर रहे हैं, हमें आपसे भी यही तवक्को है कि आप गैर आइनी और गैर कानूनी अहकामात की तामील नहीं करेंगे
और आप जाती मुलाजम मत बनिए। और पुलिस वही काम कर रही है। हम कह रहे हैं कि सियासत में मदाखलत न करें। आप हमारी रैलीज रोक के, आप हमारे पुरअमन जो मीटिंग्स हैं वो रोक के, हमारे कारकुनों को पकड़ के और क्या कर रहे हैं? आप मदाखलत कर रहे हैं। और इस मदाखलत के अमल के खिलाफ हम मुज़ाहमत करना जानते हैं। हम इस बात की मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को सारी जमातें गुजरांवाला में एक बड़े जलसे का एहतमाम करेंगी और इंशाअल्लाह आपको चलता करेंगी। खान साहब, मुकालमा है और मुतालबा है और ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान की ज़बान बोलते हैं। अगर ये मुतालबे करना हिंदुस्तान की ज़बान है तो कौम इस पर फैसला देगी। और आज हमारा जलसा राणा साहब कामयाब हो चुका, इसलिए कि हुकूमतों के बुखलाए हुए चेहरे और उड़ी हुई हवाइयाँ, इनके चेहरों, इनके लहजों की जो लर्जिश है वो इस बात की गमाज है कि वज़ीर आज़म से लेके उनके आम कारकुन तक जो मुसलसल गाली गलोच और ये तरीके हैं, ये काम नहीं करेंगे। ये हमारे आपस में फूट डालने के रवैये, तरीके, साजिशें कामयाब नहीं होंगी। हमारे क़यादत से लेके कारकुनों तक इस बात को बखूबी समझते हैं और हम इस अमल से पिछले 50 साल से गुजर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपके कोई हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। आज वज़ीर आज़म कहता है कि मेरी तरफ से हमने फ़ैसला कर लिया कि जलसे की इजाज़त है। ज़िली इंतज़ामिया, जैसा राणा साहब ने कहा, जलसे की इजाज़त नहीं दे रही। ट्रांसपोर्टरों को बुला बुला के धमकियाँ दी जा रही हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से। जो हमारे बैनर लिखने वाले या ये जो होर्डिंग्स बनाने वाले हैं, उनको बुला के ज़िली इंतज़ामिया ने धमकियाँ दी हैं कि जिसके आपने बनाए होर्डिंग्स हम आपके खिलाफ पर्चा दे देंगे। हमारे लिए कोई नया ये अमल नहीं है। जो हुकूमती रवैया और इनके हथकंडे हैं, इन फाशिस्ट हुक्मरानों से इसी बात की तवक्को की जा सकती है। खान साहब, आपने कहा कि आपको आज़ादी है जलसे करने की, लेकिन अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो जेल में जाएगा। किस कानून के तहत वज़ीर आज़म हमें धमकियां दे रहा है? हम पुरअमन लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम कानून और आइन के मुताबिक चलना चाहते हैं। यही हमारी पुरअमन जद्दोजहद हमेशा रही है। हमारा किसी से लड़ाई नहीं है, हमारा इदारों से भी लड़ाई नहीं है। हमें उस सोच से इख्तलाफ है, उसके खिलाफ हमारी ये जद्दोजहद है और पुरअमन जद्दोजहद है कि मुल्क के अंदर आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराए जाएँ, सियासत के अंदर मदाखलत का अमल ख़त्म किया जाए और इस मुल्क को आइन के तहत चलाया जाए। आइन के अंदर दर्ज जो इख्तियारात है उनके तहत इस मुल्क को चलाया जाए। पंजाब पुलिस के तमाम अफसरों से कहूँगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि वो ISI को पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे। क्या साबित करना चाहते हो कि आज पंजाब पुलिस वही है जो इमरान खान चाहता है, जो पंजाब हुकूमत चाहती है? कुछ खुदा का खौफ करो। आप इस मुल्क के, इस रियासत के मुलाजम हो, किसी शख्स के नहीं। और अपने आप को और आपकी तनख्वाहों में इजाफे हम करते हैं, आपकी नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ हम देते हैं, इस जैसे लोग नहीं देते। लिहाजा आप अपने आप को आइन और कानून के दायरे में रखो। अगर हम हुकूमत से और बाकी इदारों से ये मुतालबा कर रहे हैं, हमें आपसे भी यही तवक्को है कि आप गैर आइनी और गैर कानूनी अहकामात की तामील नहीं करेंगे और आप ज़ाती मुलाजम मत बनिए। और पुलिस वही काम कर रही है। हम कह रहे हैं कि सियासत में मदाखलत न करें। आप हमारी रैलीज रोक के, आप हमारे पुरअमन जो मीटिंग्स हैं वो रोक के, हमारे कारकुनों को पकड़ के और क्या कर रहे हैं? आप मदाखलत कर रहे हैं। और इस मदाखलत के अमल के खिलाफ हम मुज़ाहमत करना जानते हैं। हम इस बात की मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को सारी जमातें गुजरांवाला में एक बड़े जलसे का एहतमाम करेंगी। शरीफ साहब का बयानिया, JUI का बयानिया, पीपल्स पार्टी का बयानिया, ये एलामिये की सूरत में एक आपके पास मौजूद है। दूसरा, पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल से इस स्ट्रगल में है कि इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी हो, आइन के अंदर दर्ज तरीक़ाकार के तहत इदारों को चलाया जाए, सियासत के अंदर सियासी मदाखलत जो है उसको रोका जाए और फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाएँ, अवामी राज आए। पीपल्स पार्टी तो इसका सबसे पुराना नारा लेके चली हुई है। हम सारे साथी इस नारे पे इकट्ठे हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब का बैन ही ये नारा है। कोई इसके अलावा नारा नहीं है कि इस मुल्क को आइन के तहत चलाओ।
उसके अलावा कोई और नारा नहीं। इदारों से टकराव का भाई हम किसी इदारे से, एक मिनट जी, किसी इदारे से हमारा कोई टकराव नहीं है। हम इदारों को कह रहे हैं कि हमें आपका एहतराम और इज्जत है, हमें उनसे प्यार है, वो हमारे दिफा वाले इदारे हैं। लेकिन ये तारीख है कि इस मुल्क में जब जब सियासी हुकूमतें आई हैं दिफा मजबूत हुआ है, और हम अपने इदारों के सिर्फ सियासत के अंदर मदाखलत वाले रोल के ख़िलाफ़ हैं। वो थे और हैं, और हम चाहते हैं कि इस अमल से अलग हो के इदारे अपनी तौकीर भी बनाएं और पाकिस्तान की सियासत को भी आगे बढ़ाएं। सकते हैं न झंडे रुक सकते हैं, वो आपको अंदाज़ा नहीं है। हम तो एक एक झंडा लेके चले तो पाकिस्तान का पूरा एक कौसे कज़ा बनाएंगे इंशाल्लाह। इस स्टेडियम के अंदर हम इस गुजरांवाला में 16 तारीख को वो खूबसूरत कौसे कज़ा बनाएंगे जिससे ये बदकिस्मती के बादल जो इमरान खान की सूरत में, जो इस मुल्क में झूठ की सियासत की सूरत में, जो इस मुल्क में बेरोज़गारी और महंगाई की सूरत में हमारे ऊपर और आइन से इनहराफ की सूरत में मुल्क के ऊपर हैं मौजूद हैं, ये छट जाएंगे। और इस तरह के हथकंडे, ना ट्रांसपोर्ट रुकेगी, हम ज़ियाउल हक के आमर के मार्शल लॉ का मुकाबला कर सके वो नहीं रोक सका। तुम जहाँ जहाँ रोकोगे वहीं वहीं जलसे होंगे। और इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला का हमने तय किया है, गुजरांवाला में जलसा करके रहेंगे। और कौम के सामने एक और यू टर्न आ गया कि वज़ीर आज़म कह रहा है कि हमने इजाज़त दे दी, और डॉक्टर साहब यहाँ इजाज़त की सूरत हाल राना साहब ने बयान कर दी है। हमारे कारकुन जब तैयारी के लिए अपने मीटिंग्स करते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, अपने इजलास करते हैं, उसके अंदर पुलिस जा रही है। और मैं पंजाब पुलिस को भी कहूँगा कि आप किसी के ज़ाती मुलाजिम नहीं हो। जो बात इमरान खान ने अपनी तकरीर में कही, क्या वही बनना चाहते हो? मैं आईजी पंजाब के जहाँ तक ताल्लुक इस्तीफ़ों का या एलामिये का अंदर मौजूद शिकों का है, उस पर सब जमातों का इत्तेफाक राय है। ये जो तासर दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट की वजह से इस्तीफ़ा नहीं देगी, हम बहुत दफ़ा इसकी वजाहत कर चुके हैं कि माजी में ऐसा होता रहा कि एक हुकूमत गिराई गई और गिराने वालों ने दूसरी तरफ को सपोर्ट किया और ये तासर दिया कि अब ये वापस नहीं आ सकेंगे। लोगों को और मौसमी परिंदों को उड़ा के वहाँ भिजा दिया गया। अब ऐसी सूरत नहीं है। हम एक हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, इसको चलता करेंगे। हम सियासत के अंदर मदाखलत के अमल को बंद कराएंगे और इस मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने का जो हमने ऐलान किया है वो गोल अचीव करेंगे। अगर ये गोल अचीव करते हैं तो इमरान खान की हुकूमत, तो जिस दिन ये हुकूमत गई उनकी जमात भी गई, तितर बितर हो जाएगी। ये तो मुख्तलिफ इलाकों से पकड़ के लोग हैं, मुख्तलिफ जमातों वाले जो मौसमों के साथ इक़्तिदार में आए थे। ये तो जमात, तो हमें तो उससे ज़्यादा वोट मिलेंगे अगर हम इस हुकूमत को गिरा के लोगों का हक के राय दही आज़ादाना तौर पे मनवा के इलेक्शन में जाते हैं तो हम पहले से ज़्यादा अक्सरियत के साथ हुकूमतों में आएंगे। हमें कौन सा खदशा है? बिलावल साहब आ रहे हैं, वो 15 तारीख को लाला मूसा पहुँचेंगे, वो रात वहाँ क़याम करेंगे। 16 तारीख को वहाँ से वो अपने कारकुनों के साथ वज़ीराबाद से होते हुए जलसा गाह में आएंगे। यहाँ से वापस लाला मूसा जाके दूसरी रात भी वहीं क़याम करेंगे और वहाँ से 17 को वो आगे जाएंगे। इसलिए वो इस जलसे को बहुत सीरियस ले रहे हैं और वो 2 रात क़याम कर रहे हैं यहाँ। अच्छा राणा साहब, सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद कल गुजरांवाला